So internal control, see, we have a standard on auditing 315 on identifying and assessing the risk of the material misstatements through understanding the entity and understanding its environment. In short, it is nothing but it is SA 315 defines the internal control only. ठीक है, बट इसका मेन स्टैंडर्ड का जो हेडिंग है वो ये वाला हेडिंग है. नाउ लेट्स स्टडी फर्स्ट द मीनिंग. पहले हम मीनिंग को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है बेसिकली. सी व्हेन आई से अबाउट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है दे आर योर पॉलिसीज, दे आर योर प्रोसीजर्स और अ प्रोग्राम that the management incorporates control over its entire organization. ठीक है, वो सारी पॉलिसीज, वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे प्रोग्राम्स जो किसको इनकॉर्पोरेट करना है, मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है, और वो भी किसके ऊपर, ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से ऑन द एंटायर बिजनेस. See, when I say a company like a insurance industries, say then Reliance Industries, they have so many employees. ठीक है, now they have to incorporate some of the techniques. उनको mechanisms भी तो चाहिएगा इतने सारे लोगों को handle करने के लिए. So they obviously ना they will require certain mechanism where they can control whole of this organization. Now this control can be in the form of technology. It can be in the form of managers, it can be in the form of organizational structure, or it can be even in the form of the segregation of the duties and many more. See, अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको अपना मोबाइल किसी और को नहीं दिखाना है, so what you put it as a internal control, you keep the passwords on it. ठीक है, अभी पासवर्ड्स भी देखो, यहाँ पर आपने क्या यूज किया, आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज किया. इधर यू विल बी कीपिंग द फेस डिटेक्शन or you will be using the fingerprint, या तो simple pattern will be used, a pin number can be used. So what is this? This is nothing but internal control. Why you are doing? So to safeguard the internal things, कि आपके अंदर जो भी important data है आपके फोन में, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको safeguard कर रहे हो. The same way, जैसे आप अपने मोबाइल के लिए ऐसे safeguard कर रहे हो, वैसे ही कंपनी के लिए क्या करना है, this policies, procedures and the programs, they are nothing but they are the this techniques through which this company can have a mechanism on it, they can have a control on it. Okay, now internal control, when I say about the internal control, it is nothing but it is a control on the internal framework of the company. You are not looking more on the external, but आप अपनी ही company का internal framework देख रहे हो कि ओवर आप ये इंटरनल कंट्रोल किसके ऊपर देखोगे, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के ऊपर देखोगे, असेट्स के ऊपर देखोगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर देखोगे. ठीक है, सो हियर इट विल हेल्प अस टू सेफगार्ड द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. And this should be, you know how it should be carried out, it should be carried out properly, orderly and in the efficient manner, in the proper conduct. Now when we say about the internal control, so internal control दो factors से बना है. Which are those two factors? One is internal audit, which we are going to study in as a next topic. ठीक है, ये अपना जैसे इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनल ऑडिट. in that we are going to see okay, what is internal audit, how it is conducted, who is going to conduct it. तो पूरा जो भी brief है हम उसका वहां पर पढ़ेंगे. And then second one, it is made up of a internal check as well. हमें इंटरनल कंट्रोल के साथ इंटरनल चेक कैसे करना चाहिए. सो इंटरनल चेक प्लस इंटरनल ऑडिट टुगेदर व्हेन यू क्लब इट अप, इट बिकम्स योर इंटरनल कंट्रोल. So basically in the internal control, we are going to study about these two parts only, internal check as well as about the internal audit in detail. Now, what is the purpose of, or you can say what is the objectives of this internal control? So there are the two purpose, or you can say there are the two objectives of the internal control. One is so okay, proper accounting records, or you can say the financial records. Second one is administrative controls and the others. अब देखो, जब मैं ये बोलती हूँ कि ये पर्पस है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसका क्लासिफिकेशन होता है.
अभी आपको ये आप अकाउंटिंग कंट्रोल्स आपको कैसे रखने चाहिए, और आपको दूसरे सारे अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग कंट्रोल्स हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आ जाएंगे. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ओवर योर इम्प्लाइज योर इथिक्स के कैसा इथिक्स होना चाहिए, कैसा गवर्नेंस होना चाहिए, हाउ शुड बी द बजटरी कंट्रोल. तो जब हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्वालिटेटिव कंट्रोल हमारा कैसा होना चाहिए, एडमिन कैसी होनी चाहिए, हाउ द मैनेजमेंट शुड डिसाइड द पॉलिसीज एंड हाउ द ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द अकाउंटिंग कंट्रोल्स. तो एक होता है हमारे अकाउंटिंग कंट्रोल्स, दूसरे अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग कंट्रोल्स जो भी दूसरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या तो ऑपरेशनल कंट्रोल्स है, वो भी मेजर रोल्स प्ले करते हैं इन दिस इंटरनल कंट्रोल. नाउ व्हेन आई से अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स, तो इंटरनल कंट्रोल हमें कैसे रखना चाहिए. तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कंप्लीटली ऑथोराइज्ड है, देन दे आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुए वैसे प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अभी ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस टुडे एंड यू आर रिकॉर्डिंग 3-4 days later. It should not happen like this. Then your books of account should be proper, they should be completed and it should show your accurate results. जो भी आप फाइनल रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट शुड बी प्रॉपरली रिलायबल एंड इट शुड बी रेडी इन द टाइम. अगर फाइनल अकाउंट्स प्रॉपरली रेडी हुआ, तो टाइमली रेडी हुआ, तो ऑडिटर कैन स्टार्ट विद द ऑडिटिंग पार्ट. फिर जो भी आपके असेट्स है आप उसको प्रॉपरली सेफ गार्ड करो. जो असेट्स यूज नहीं हो रहे तो उसको प्रॉपरली सेल कर दो. एंड अगर सेल भी हुआ है तो प्रॉपर अथॉरिटी थी या नहीं, प्रॉपरली वेरीफाइड हुआ था या नहीं वो. अगर डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर रहे हो तो प्रॉपर डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन इज डन और नॉट. स्टॉक वैल्यू कर रहे हो तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन की जो टेक्निक्स यूज की है दैट इज प्रॉपर और नॉट, वेदर यू आर यूजिंग परपेचुअल और अ पीरियोडिक मेथड, पर जो मेथड्स यूज कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं. अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द प्रिंसिपल्स आर फॉलोड और नॉट. सो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स जब व्हेन वी सी अबाउट द अकाउंटिंग कंट्रोल. हमें ये इंश्योर करना है कि मैंने आपको जो भी अभी सारे बताए वो प्रॉपर है या नहीं. ठीक है, तो दोनों का ऊपर कंट्रोल इज क्वाइट नेसेसरी. अगर कंट्रोल है तो ही हम प्रॉपर टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं. Now, apart from this class, we also have certain, objectives, certain purpose. We also have a certain characteristics of it. So let's study that characteristics. Let's study that objectives, or you can say the advantages of the internal control. So these are the aims. What are the aims to ensure that our control is proper or not? These are the list of the things which we have discussed right now. Same way, we have also the certain list for the operational or administrative control. This just ensure that हम सिर्फ यहाँ पर ये assurance ले रहे हैं कि हमारा जो भी conduct है वो proper और efficient manner में हो रहा है. ऑडिटर सबसे पहले ना ये सारा ऑपरेशनल कंट्रोल्स को पढ़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके ऑपरेशनल कंट्रोल्स ना अफेक्ट करते हैं अकाउंट्स को. ये देखेगा कि आपका क्वालिटी कैसा है, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आपका इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट ठीक से हुआ या नहीं, आपका बजट पे कितना कंट्रोल है, आप दूसरे सारे ये पॉलिसीज और ये सब कैसे देखते हो. All these things will be analyzed, all these things will be asked by the auditor as well and to the client first. He will study whole of these things and then he will be starting with the auditing part.